نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا دين اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين ثم آمين۔ ہم اپنا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ یاسین کی اس آیت نمبر 22 سے جو ہے ہمارا نیا جز سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی جس کی تلاوت کی گئی الجزء الثالث والعشرون، ہمارا 23واں پارہ، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ہم نے اپنا جو 22واں جز ختم جب کیا تھا تو سورہ یاسین جاری و ساری تھی، اور سورہ یاسین میں ایک واقعہ پیش ہو رہا تھا کہ 3 رسولوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف، جو کہ ترکی کے ایک علاقے کا علاقہ بتایا جاتا ہے، وہاں بھیجا تھا۔ پہلے 2 رسول بھیجے، پھر اس کے بعد ایک اور رسول کو بھیجا، تو وہاں ان کی پوری قوم جو ان سی تھی ان کے ساتھ جھگڑ رہی تھی اور وہ ان کی بات کو نہیں مان رہی تھی۔ تو اس وقت شہر کے ایک کنارے سے ایک جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے، ان رسولوں کی انہوں نے گواہی دی تھی، اپنی قوم کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا رہے تھے۔ ان کے سمجھانے میں جو بات ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس سے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسا کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارت مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھا رہے تھے، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی تو وہ بات کرے اپنی قوم سے کہ تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اور اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جنت میں چلا جا۔ تو جنت میں کب جاتے ہیں؟ کیا جنت میں کوئی زندہ انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کو کوئی ایسی بات ہے؟ نہیں، اللہ کے جو پلان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا معاملہ ہے، اور اگر اس کی جو برزخ کی زندگی ہے اس میں بھی جنت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جنت پہ چلے جانا کا واقعہ ہے یہ مستقبل کی بات ہے۔ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ماضی کی جو بات کر رہے ہیں، جو اس وقت وہ واقعہ ہو رہا تھا، اور اگلی آیت میں اس آدمی کے لیے، وہ جو نیک انسان تھے ان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں جیسے ان کو کہا جا رہا ہو کہ جنت میں چلا جا، تو اس سے معاملات یہ پتہ چلتے ہیں کہ اس قوم نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ یہ بھی معاملات پتہ چلتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی روح قبض کی گئی تو اسی وقت اس روح کو جنت کے درجات کی جو ہے ان میں مقام عطا فرمایا گیا۔ دیکھیے، جو شہید کی روح ہوتی ہے، ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ، جو شہید کی روح ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقامات میں جو ہے درجہ دیتے ہیں اور وہاں پہ رکھتے ہیں، چونکہ وہ اس وقت گواہی دے رہے تھے حق اور سچ بات کی، اور ان کو اللہ کی راہ میں شہید ہی کیا گیا ہے، یہی چیز مانی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس میں داخل کر دیا، اور اس کا کس کے سبب ہوا؟ کہ اس کے سبب ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ان رسولوں کی، جبکہ تمام معاشرہ، تمام لوگ ایک طرف تھے اور وہ 3 لوگ ایک طرف تھے، ان پہ ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا تھا سوائے اس ایک انسان کے، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور سچی گواہی دی۔ دیکھیں، سچی گواہی دینا، وہ معاملہ کوئی بھی ہو، دین کا معاملہ ہو، زندگیوں کا معاملہ ہو، جس سے کہ اللہ سچ بات کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سچائی پسند ہے، سچ بات کی گواہی دی جائے تو اللہ کو اس سے اچھی چیز جو سی ہے وہ مطلب کیا ہی پسند ہوگی، کیونکہ اس چیز کی گواہی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیں ان کی جان اس میں استعمال ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے
जन्नत में उनको कह दिया कि चला जा, और वहाँ पे देखिए वो जन्नत में उनकी रूह जा रही है और वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो किस कदर अच्छी, मतलब कि उनका दिल कितना अच्छा था, कहने लगे काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता। तो अल्लाह ताला ने ये जो मकाम है, एक तो वो उनका वो जो उनकी ज़िंदगी में बात करने वाला मकाम है, सारा वाक़या वो बयान किया, मंज़र और सारे उनकी डायलॉग जो वहाँ पे वो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो जन्नत में वो जाने के बाद उनकी रूह ने जिस तरह से बात की, उस चीज़ को भी अल्लाह ताला हमें बयान कर रहे हैं। वो तो अल्लाह के जो बंदे हैं उनका मामला है, वहाँ तो अभी तक कोई इंसान की पहुँच है भी नहीं, पहुँच तो इंसान की माज़ी में भी नहीं है कि जो वो ये वाक़या हो चुका जो अल्लाह बयान कर रहे हैं। तो बात ये है कि हाँ, अल्लाह ताला उनकी बात को लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख दिया है? कुरान में। और इस चीज़ को जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये वही नाज़िल हो रही थी, तो उनको उनको भी जब ये चीज़ बताई गई और वो जो मुशरिकीन हैं वो चीज़ इसको भी सुन रहे थे, तमाम जो इसको सुनते हैं तो पता चलता है कि एक मोमिन का दिल जो होता है वो कितना खैरख्वाह होता है अपनी कौम के बारे में, अपनी उम्मत के बारे में, और ये कि दूसरे लोगों के बारे में। तो जो भलाई होती है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगनी होती, वो दूसरों के लिए भी मांगनी होती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने इसीलिए तो हमें सूरह अल फातिहा में जब कहा है पढ़ने को, तो उसके साथ नून अलिफ ना है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे समझ आती हैं। तो इस तरह से इस चीज़ में चला जाता है। तो आगे आयत की तर्जुमा पढ़ते हैं कि मुझे मेरे रब, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में से कर दिया है। तो उनकी जिस तरह से रूह ने जो सा कलाम किया वो ये कि मेरे रब ने किस तरह बख्श दिया और मुझे किस तरह बाइज़्ज़त लोगों में किया कि जो उनको दर्जा वहाँ पे मिला, काश उनकी कौम को पता चल जाता। अब अल्लाह ताला ने ये बात जो यहाँ पर भी बयान की है, इससे बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, ता क़यामत आने वाले इंसानों को पता चल गया है कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ उसकी अच्छाई का बदला उसको देते हैं, उसकी गवाही का, उनकी नेक अमल का बदला, तो वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ से बात से पता करने चलने से पता चलता है कि अभी वो कौम तब्लीग के मराहिल से गुजरे थे, अभी उनका दीन इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था और यहाँ पे कोई बात नहीं पता चलती कि यहाँ पे उनकी कोई नमाज़ों का, रोज़ों का या किसी चीज़ का ज़िक्र होगा, ठीक है? क्योंकि वो दीन अभी जिस उनके मराहिल में था, अभी वो उनकी तब्लीग के शुरू के मराहिल में था कि जहाँ पे उनकी कौम जो है सख्त ती के साथ जौन-सी है, अपनी बदबख्ती के जो कि चीज़ों पे अमल कर रही थी। क्योंकि आगे जो आयत आ रही है, वो बता रही हैं कि वो कौन-सा ज़ुल्म उन्होंने अपने साथ किया था कि पहले स्टेप पे ही सख्ती के ऊपर उतर आए थे। तो वहाँ पे बड़ी बुरे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया था रसूलों को भी, और जो है ये एक मोमिन जौन-सा था सिर्फ़ उनके ऊपर जो ईमान लेकर के आया। तो बात ये है कि जो खैर-ख्वाही का अमल था, अब ये चीज़ें सब इंसानों के लिए होंगी कि जो मोमिन होता है, वो अपनी खैर-ख्वाही जो चाहता है, वो सबके लिए ही इस्तेमाल करता है, कि उसके लिए तमाम इंसान। तो इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो इस बात से, इस मिसाल से भी साबित हो जाता है कि वो अपनी खैर-ख्वाही से ही सब लोगों को ये इल्म जो है, वही का पहुँचाना चाहते हैं, पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, और इसके अंदर उनकी खैर-ख्वाही है। वो किसी के साथ बुराई नहीं कर रहे, और जो उन ऐसे लोगों के साथ कोई बुराई करता है आगे से, उनका तो फिर फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उनको जन्नतों में इस तरह से दाखिल कर दिया, और उनके मुकाबले में जो आगे उनकी कौम का वाक़या बयान किया जा रहा है, तो वो क्या है? तो बात ये है कि जो यहाँ पे उनकी एक और बात जो इसमें बयान करनी वो ज़रूरी है, वो ये कि जब अल्लाह ताला को किसी की कोई अदा पसंद आ जाती है, मोमिन की कोई अमल, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि उसके बाकी नामा अमाल में वो क्या खूबियाँ और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि नमाज़ें और रोज़ा और उसका ज़िक्र किया गया, इन चीज़ों का कोई ऐसी बात और ज़िक्र नहीं आया। और अक्सर औक़ात हमें इस्लाम की हिस्ट्री में भी यही देखने को मिलता है कि शुरू का में जो दौर था इस्लाम का, उसमें बहुत सारे सहाबा ऐसे थे, जिन्होंने बात सुनते साथ ही अभी वो जिस भी ईमान के दर्जे पे थे और उनकी जानें अल्लाह की राह में गई हैं, तो उनके बारे में जो सवाल हुआ, तो वो भी यही है कि देखें, जो एक वो दौर था कि जिसके अंदर उनकी जितनी भी उनकी गलतियाँ थी या ये कि उनकी खूबियाँ थी, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ पे जब एक बात उसमें से चुनी जाती है, तो उनका नाम-ए-माल उनके साथ है। और हम जिस दौर में मौजूद हैं, हमें यहाँ पे दीन एक एस्टेब्लिश रूल के तौर पे दिया गया है, और वहाँ पे हम उस चीज़ को पाते हैं, और अब यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होगी कि हम अपना अपना मुकाबला उन लोगों के साथ उठा सकें। लेकिन उसके बावजूद हम अपने अमल में कहीं पे भी अगर कोई कमी हो जाती है, तो हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जब अल्लाह ताला को नेक नियति के साथ किया गया अमल पसंद आ जाता है, तो उसमें अगर कोई खामी भी होती है, तो उसको ये दुरुस्त भी कर देते हैं और उसका बदला भी अच्छा ही देते हैं। तो हमें ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए एट लीस्ट, और ये कि अल्लाह ताला की नज़र छोटी से छोटी बात पे और बड़ी से बड़ी बात पे होती है, हर माइन्यूट डिटेल पे भी होती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू को जिस तरह से बयान कर रहे हैं, इससे ये उनकी मतलब शख्सियत की आदत ये मुझे पता चल रही है कि उन्होंने एक जो बात उन्होंने की, जो वहाँ पे गुफ्तगू खड़े होके की, वो कितने अच्छी नेक नीति के साथ कर रहे होंगे, ठीक है? जो अपने रसूलों की वहाँ पे गवाही देने के लिए आए, तो उन्होंने अपने रसूलों की गवाही इस तरीके से की। अब आयत की तरफ देखते हैं, इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा, ना इस तरह हम उतारा करते हैं। तो यानी कि कोई अल्लाह ताला फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजते इंसानों को अज़ाब के लिए। तो बाज़ दफ़ा ज़मीन में ही जो चीज़ें मौजूद होती हैं, वो काफ़ी हो जाती हैं। तो ये इस कौम की तरफ इशारा है कि जो इतनी बड़े बन कर के अपने आप को समझ रहे थे कि इनके पास ताकत है, तो अल्लाह ताला उन्होंने बड़ी हक़ीर चीज़ों से ख़त्म कर दिया। वो ये कि वो तो सिर्फ़ एक ज़ोर की चीख थी, ये का जब वो सब के सब बुझा दिए गए। ऐसे बंदों पर अफ़सोस है जब कोई भी रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी कि हँसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि
से पहले बहुत सी कौमों को हमने गारित कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कि कोई जमात मगर के सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, और इनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है जिसको हमने जिंदा कर दिया और इसी में से गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, यानी कि जो कुछ ज़मीन उगाती है उसमें से इंसान खाता है, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए, और जिनमें इसमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं, और इनमें से इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े बना पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह वो खुद उनके नफूस हो, ख्वाह वो चीज़ें हो जिन्हें वो जानते भी ना हो, इनके लिए उसमें एक निशानी रात है जिसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो इसी पर चलता रहता है। ये अंदाज़ा है ठहराया हुआ गालिब बाइल्म अल्लाह का। तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया में चीज़ें उगाई हैं उनमें से तो बहुत बड़ी, ज़्यादा उससे कहीं बड़ी टेक्नोलॉजी जो उनकी है वो तो ये जो उन्होंने सूरज चाँद सितारे और तमाम कायनात में इतने ढेर सारे जो सूरज और सितारे और सब चीज़ें मौजूद हैं, उनको उनके सिस्टम में रखना, आपस में वो टकराते भी नहीं हैं और तरीके के साथ सारे के सारे अपने जो मदार में, एक्सिस में और अपनी लाइन में वो चल रहे हैं। तो ये जो अंदाज़ा अल्लाह ताला ने ठहराया हुआ है या जो सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है ये बहुत ही आला है, और बाइल्म अल्लाह का, बाइल्म का, तो उनके इल्म का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। पर चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर की हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पूरा खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफ़ताब की ये मजाल है कि चाँद को पकड़े और ना ही रात के दिन पर आगे बढ़ जाने वाली, यानी कि सूरज चाँद के साथ जाके टकरा नहीं सकता या उसके जगह पे नहीं आ सकता, और ना ही रात और दिन जो है वो तेज़ी के साथ अपने जो इतना टाइम इनका है उससे ज़्यादा ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं, सबके सब आसमान में तैरते फिरते हैं। इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, यानी कि इंसानों को कि अल्लाह ताला की एक निशानी ये भी कि तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने जो ज़मीन पे एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जो अल्लाह ने खुद मतलब उसको होने का हुक्म दिया था, तो तमाम इंसानों को कश्ती में शामिल कर दिया गया था, जिसके बाद कि इंसान की नस्ल बची है। और इस सैलाब की जो निशानी जो है वो अब जितने भी लोग कहना चाहिए कि चोटियों को सर करते हैं, ज़मीन की बुलंद तरीन चोटियों तक इतना सैलाब था कि ज़मीन की बुलंद तरीन चोटियों के ऊपर भी मछलियों के जो फॉसिल्स पाए गए हैं, तो इससे जो है इस चीज़ की तस्दीक होती है कि एक बहुत बड़ा सैलाब और बहुत बड़ा पानी का जो है पाया जाना ज़मीन के ऊपर एक वक्त में गुजर चुका है, क्योंकि वहाँ पे मछली जो है उसका होना या इस किस्म की जो मतलब स्पीशीज़ का इस तरह से होना ऐसी किस्मों का और उनके फॉसिल्स का वहाँ पाया जाना उनकी बाकियात का, वो उनमें से नहीं है कि जो लोग वहाँ गए उनको लेके गए हों, क्योंकि मछली और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल तो जो मतलब साहिल समंदर होते हैं उनके इलाकों के नज़दीक होता, अगर पता चलता कि चलो वहाँ है, लेकिन वहाँ पानी के जानदारों का इतनी ऊंचाई के ऊपर उनके फॉसिल्स का रह जाना इस चीज़ की दलील है कि वो चोटियाँ उसमें डूबी थी उन पानी में, और जो कि हमने आयात में पढ़ा कि जो कश्ती थी वो एक जूदी नामी पहाड़ के ऊपर जाके ठहरी थी, तो जो जब वो पानी उतर रहा था तो उसके ऊपर वो कश्ती जो है वो जाके ठहरी थी। तो अल्लाह ताला ने ये जो यहाँ पे वाक़या बयान किया है, तो इस चीज़ को तो अब ये सब जो है वो उस चीज़ को मतलब ये चीज़ तो साबित हो चुकी हुई है। तो ये बात ये है कि हम इन सारे हक़ाइक़ को देख कर के अपने ईमान को इसमें ज़्यादा इज़ाफ़ा करो, इसलिए उस जैसी चीज़ें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। तो इसी तरह से कश्तियों के अलावा भी अब तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ईजाद हो चुकी हैं। ये सब अल्लाह ताला ने इंसान को जो इल्म दिया हुआ है उसके मुताबिक होता है, और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई इनका फ़रियाद रस होता, ना वो बचाए जाते। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक इन्हें फ़ायदा दे रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो बच्चों इससे जो कुछ तुम्हारे सामने है पीछे है ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो इनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई ऐसी निशानी नहीं आती जिससे वो बेरुखी ना बरतते हों। यानी जो भी निशानी दिखाई जाती है, बात की जाती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। इंसान को ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इंसान कोई उम्र गुजर भी जाए और इस दुनिया से चला भी जाए और इस दुनिया में रहे भी, दोनों सूरत हाल में वो अल्लाह ताला की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए में से कुछ दो, तो वो कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला पिलाता था। यानी कि वो अगर ऐसी बातें करते हैं कि गरीब लोगों को या मस्कीन को खाना क्यों खिलाएं, क्योंकि अगर अल्लाह की मर्जी होती तो खुद इनको खिला देते, जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला पिला देता, तुम तो हो ही खुली गुमराही में। तो ये जो अल्लाह ताला ने दुनिया में दौलत का कम होना, ज़्यादा होना, स्टेटस और ये वो सब कुछ तकसीम सी रखी है, ये सिर्फ इस वजह से है कि जिनके पास है उनको आजमाया जाए कि उनके पास जब होता है तो वो क्या करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं, अल्लाह की बातों पे चलते हैं कि नहीं चलते, और जिनके पास नहीं है उनको आजमाया जाए कि जब चीज़ नहीं होती तो वो क्या अमल करते हैं, वो किसकी तरफ रुजू करते हैं, और ये कि उसके अंदर भी उनके अमाल को देखा जा रहा होता है। बहरहाल अल्लाह ताला से हमेशा हम अच्छे हालात ही मांगते हैं कि अल्लाह ताला किसी भी किस्म की मुश्किल में ना डालें, आमीन। तो वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, अगर सच्चे हो तो बतलाओ। इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, ये बाहम आपस में लड़ाई झगड़े में ही होंगे। उस वक्त तो ना ये वसीयत कर सकेंगे ना अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे। तो सूर के फूके जाते ही सबके सब अपनी कब्रों में अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे, कहेंगे कि हाय हाय हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सचमुच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक तुंद आवाज़ की यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो कुछ तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं, उनकी बीवियां सायों और मुसहरियों में तकिया लगाए हुए होंगे। तो यहाँ जो मौजू चल रहा था कि जिन लोगों ने झुटलाया और उनकी जो है उसके बाद इंसान के ऊपर जब मौत हो या अजाब हो या फिर ये कि क़यामत का जो मंजर यहाँ पेश किया जा रहा है, तो उस वक्त ये नहीं होगी कि वो कोई इंसान किसी को वसीयत कर सके, कोई बात कह सके, वो अचानक ही आवा क्या होती है। उसके बाद जब सब के सब तबाह हो जाएँगे तो उसके बाद जो है सूर फूँका जाएगा, तो सब अपनी कब्रों से या जिस जगह पे कोई इंसान मरा था वहाँ से वो पैदा होकर के तेज़-तेज़ अपने रब की तरफ सभी चलेंगे। क्या अच्छे क्या बुरे सब ऐसे होगा। और फिर ये है कि जब वो ये एक-दूसरे से सवाल करके हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठाया है, तो यही है रहमान का वादा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि इस चीज़ का वादा किया जा रहा था, जिस चीज़ को वो कहते कि जल्दी ले आओ, तो जब ये होगा तो उस दिन उनकी ये बातें होंगी। तो फिर उसके बाद एक आवाज़ के साथ सारे सामने हाज़िर कर दिए जाएँगे। तो जो एक आवाज़ होगी या बुलाया जाएगा उस पुकार की वजह से, यानी सूर का फूँक
थूकना जो सा है उसकी वजह से फिर सारे के सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन बताया जाएगा कि किसी को कि जो वो कोई काम करता था उसका बदला दिया जाएगा, तो किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, और वही बताया जाएगा कि जो कुछ वो काम करते थे उसका बदला मिलेगा। तो जो जन्नती लोग होंगे उनका फिर अल्लाह ताला ने मंजर पेश किया जन्नत का, कि अपनी मर्जी के दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश, यानी दुनिया में तो इंसान जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो वैसे वैसे थकावट उसको आती जाती है, तो कोई भी मशगला हो एंड में इंसान थक ही जाता है, लेकिन वहां पे ये होगा कि वो थकेंगे नहीं, वो फ्रेश रहेंगे, और वहां पे हशाश बशाश रहेंगे, अपनी मर्जी के काम कर रहे होंगे, मशगले या मतलब खेल में या जो भी उनको चीज़ अच्छी लग रही होगी, उनमें उनकी बीवियां सायों में सहरियों पे तकिया लगाए बैठे हुए होंगे। इंसान का बहुत दिल चाहता है कि ऐसे लक्ष्मी का टाइम हो और उसको कोई काम ना करना पड़े, उसका फ्री टाइम लेजर टाइम जो है वो ऐसा से हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। वो कोई कोई मौके ऐसे होते हैं कि जिनमें इंसान ऐसा कर रहे छुट्टी के दिन या उस तरह से, ज़्यादातर तो इंसान कामों में बिजी होते हैं। तो जन्नत में जो अल्लाह ताला ये चीज़ बता रहे हैं, तो वहाँ पे कोई करने का काम नहीं होगा, वहाँ पे ये आराम ही है, जिनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे, और उसमें जो कुछ भी वो तलब करेंगे, यानी जो कुछ इंसान इसके अलावा चाहेगा, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहा जाएगा, ए गुनाहगारो आज तुम अलग हो जाओ, ए औलाद आदम क्या मैंने तुमसे कोलो कुरार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है, शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को फेंका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते? यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा था, अपने कुफर का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन इनके मुंह पे मोहरे लगा देंगे, उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पास गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो करते थे। अगर हम चाहते तो उनकी आंखें बेनूर कर देते, रस्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता? अगर हम चाहते तो उन्हीं की जगह पे उनकी सूरतें मस्क कर देते, यानी उनकी सूरतें जो सी हैं, जो उनके चेहरे हैं वो बिगड़ जाते, और फिर ना वो चल फिर सकते ना लौट सकते। अगर इंसान सोचे तो ये आंखें अल्लाह ने दी हैं, अगर ये आंखें ही ना हो तो रास्ता कैसे कोई देख पाए? और जो सारा काम इंसान ये सर और चेहरे के ऊपर जो सारे हमारी हिस्से पाई जाती हैं, सुनना बोलना देखना, और इसी चीज़ से हम सीखते हैं समझते हैं डेटा को जो हमारे इर्द गिर्द होता है, और हम काम करते हैं। और तो बात ये है कि अगर यही काम ना कर रहा हो तो इंसान उल्टे पाँव पे फिर जाए, यानी ना इंसान किसी जगह जा सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना कुछ समझ ही ना आए कि क्या अगर चेहरा खराब भी हो जाए, ये सलाहियतें ले ली जाए, और जिसे हम बूढ़ा कर देते हैं, ऐसे पैदाइशी हालत की तरफ उल्टा कर देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? तो जो बुढ़ापा होता है उनमें अक्सर औकात कमजोरी आ जाती है, बचपन वाली हालतें आ जाती हैं, वही चीज़ें जब इंसान को किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता, ऐसी बीमारियां लग सकती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहे हैं कि इंसान की ये जो हालतें होती हैं उसके अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए हैं, ना इसके लायक है, ये तो सिर्फ नसीहत और वाज़िह कुरान है, ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है, और काफरों पर हुज्जत साबित हो जाए, यानी कि उनके सामने ये एक नसीहत आई थी, उन्होंने नहीं मानी, अब ये हुज्जत है उनके ऊपर, अब सबूत है ये उनके ऊपर। क्या वो ये नहीं देखे हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए छुपाए जानवर भी पैदा कर दिए कि ये इसके मालिक हो गए हैं, इन मवेशियों को हमने इनका ताबे फरमान बना दिया है, जिनमें से बास उनकी सवारियां, हर बास का ये गोश्त खाती हैं, इन्हें इनसे और भी बहुत से फायदे हैं, और मशरूबात क्या ये फिर भी शुक्र अदा नहीं करेंगे, यानी कि जो जानवरों से हासिल होती है पीने की चीज़ें जैसे कि दूध वगैरह, तो क्या ये शुक्र अदा नहीं करेंगे, और वो अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाए, यानी कि उनसे मदद हासिल करें। उन माबूदों को इंसान क्यों पूछता है? सवाल ये है कि अल्लाह ने सवाल किया है कि बुतों को या अल्लाह के अलावा किसी को भी जो बनाया गया हो, कुछ भी ठहराया हुआ, उनको क्यों उनकी पूजा की जाती है? कि ताकि उनसे मदद हासिल की जाए। हालाँकि उनके अंदर तो मदद की ताकत ही नहीं है, फिर भी मुशरिकीन उनके लिए हाज़िर बाश लश्कर बने हुए हैं, यानी कि उन्हीं की खातिर काम कर रहे हैं, उन्हीं के आगे जा रहे हैं जो सुनते भी नहीं, मदद भी नहीं कर सकते। बस आपको इनकी बात गमनाक ना करे, यानी कि जो मुशरिकीन होते हैं और जो कुफ़र करते हैं और जिनको अपना लेते हैं, उन्हीं के लिए वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हालाँकि वो बिल्कुल एक गलत किस्म की बात की पैरवी करें, हम इनकी पोशीदा रुलानियाँ सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया, फिर यकायक वो सरी जुगड़ालू बन बैठा और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया, कहने लगा इन गली-सड़ी हड्डियों को कौन ज़िंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि इन्हें वो ज़िंदा करेगा जिसने इन्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया है, वो सबकी तरह पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख़्त से आग पैदा कर दिया है, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो। यानी कि अल्लाह ताला ने सरसब्ज़ दरख़्त के अंदर भी कहते हैं कि अरब में ये 2 दरख़्त हैं, जैसे कि मर्ख और अफ़ार, इनकी 2 लकड़ियाँ आपस में रगड़ी जाती हैं तो आग पैदा होती है। सब्ज़ दरख़्त से आग पैदा करने का हवाला इसी की तरफ है, और मुख्तलिफ़ और इलाकों में भी ऐसे ही पाया जाता है, आग पैदा मतलब इस तरह से रगड़ के पैदा की जा सकती है। तो ये इस तरह से बात आती है। और ये जो बात है कि सब हड्डियों को गली-सड़ी हड्डियों से जो अल्लाह ताला ने बात बयान की है कि दोबारा से इंसान को ज़िंदा पहले की तरह पैदाइश के बना देना, तो इसके बारे में भी एक बात इस तरह से पता चलती है कि एक हदीस में एक वाक़या बयान किया गया है कि एक शख़्स ने मरते वक़्त की वसीयत की कि मरने के बाद इसे जला कर के उसकी आधी राख समंदर में और आधी राख तेज़ हवा वाले दिन खुश्की में उड़ा दी जाए। अल्लाह ताला ने सारी राख जमा करके इसे ज़िंदा फरमा दिया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि आपके खौफ की वजह से ऐसा किया। तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। सही अल बुखारी की हदीस 6480 है, और ये जिस भी उम्मत का वाक़या होगा उनके लिए अगर ये चीज़ जायज़ थी या कुछ या उस इंसान का अपना अमल था, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई बात इल्म की होती है या पुरानी कौमों की होती है, तो वो उस बात को बयान तक करने के लिए होती है। हमने ये देखना है कि आया ये कि हमें इन कामों की इजाज़त है कि नहीं है। अल्लाह सिर्फ़ ये इस चीज़ को बयान करने के लिए जो चीज़ इसमें बयान कर रहे हैं कि अल्लाह जैसे पहली दफ़ा पैदा करते हैं, वैसे ही दोबारा से किसी भी हालत में इंसान क्यों ना हो उसको पैदा कर देगा। और हदीस में जो ये बात बयान की गई है, इससे हमें ये बात समझ आती है कि भले इंसान जला ही क्यों ना दिया जाए, उसकी हड्डियाँ भी ना हो, तब भी वो दोबारा पैदा कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमें जो है वो उस चीज़ की समझ आ जाती है कि जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, वो इन जैसों के पैदा करने के पर कादिर नहीं है, इन जैसे कादिर नहीं है, बेशक कादिर है। यानी कि अल्लाह ने पहले सवाल किया कि वो जो जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़, इंसान से ज़्यादा बड़ी चीज़ है आसमानों और ज़मीनों का बनाना, तो क्या अल्लाह ताला को जो कादिर नहीं है कि इंसान को बना सकें? तो बेशक वो कादिर है, तो वही तो पैदा करने वाला और जानने वाला है। और
جب وہ کسی چیज़ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ بس کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو شان ہے نا سورہ یاسین کے اندر بڑی خوبصورت طریقے سے بیان ہے۔ اللہ صرف اس چیز کو ہو جانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پہ دعا مانگی جا سکتی ہے روک کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی بڑی اپنی شان کا اظہار فرمایا ہے، تو ہمارے بھی جو کام ہے جن کے لیے آپ کے کن کے منتظر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ مطلب ان کے لیے بھی کن کہہ دیجیے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس تعریف کے ساتھ جو ہے سورہ یاسین جو ہے وہ یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سورہ صافات ہے، وہ مکی صورت ہے، اس کے 5 رکوع ہیں، 182 آیات ہیں اس کی۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح سے ڈانٹنے والوں کی۔ یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو سب کی صف باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کے اپنا کام لے لیتے ہیں زمین پہ جب ہوتے ہیں۔ پھر ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، اور یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے انتظار میں صف باندھے بھی کھڑے ہیں، لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو یا جو بھی کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اپنا کام لینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر یا قرآن کی تلاوت یا اللہ کا جو بھی ذکر ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھا کے یہ چیز یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، یعنی فرشتوں کا بھی، انسانوں کا بھی، اور تمام مخلوقات کا۔ اب مشرکین نے جیسے کہ عام باتیں بنائی ہوئی تھیں کہ جو وہ فرشتوں سے مدد مانگتے تھے اور کچھ اس طرح کی چیزیں کہ یہ کھانا حلال ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ان کے لیے وہ چیز اس طرح سے کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان ساری چیزوں کے یہاں پہ اس چیز کا انکار ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، اور یہ کہ سب مخلوقات کا معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حتیٰ کہ فرشتوں تک کا بھی جن کو بڑا کچھ سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب بھی وہی ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی دنیا جو ہے جو یہاں سے نظر آتا ہے ستارے کی زینت سے آراستہ کیا کہ جو ہمیں دور سے جتنے ستارے نظر آ رہے تھے روشنی کے، تو اصل میں تو ویسے اب جیسے کہ سائنس نے اس کو دیکھا ہے اسپیس سائنسز میں کہ یہ تو سورج کی طرح اور بعض سورج سے بھی بڑے جو سے ہیں سورج پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سے وہ اتنے فاصلے پہ موجود ہیں، اتنی وسعت ہے اس آسمان میں، کتنے ملکی ویز اور اتنے وہ سارے ہیں اور اتنے جھرمٹ ہیں سورجوں کے، اور جو دور سے ہمیں ستارے کی طرح نظر آتے ہیں، ان کی روشنی انتہائی کم ہو جاتی ہے کہ ایک نقطے سے بھی زیادہ کم، تو وہ ہمیں ستارے کی طرح رات کو آسمان پہ نظر آتے ہیں، اور وہ ان کی روشنی کی وجہ سے رات کو آسمان جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زینت کہا ہے۔ اور ہر موسم میں یہ نظارے فرق ہوتے ہیں، کبھی جو برج جن کے ستارے وہ آپس میں جن کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کلسٹرز جو سے وہ نظر آتے ہیں کبھی کسی جانب سے، اور ایک قطبی ستارہ تو مسلسل ہی نظر آتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ طرح طرح کے ستارے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اور ان کو حفاظت کے لیے ہر شیطانی سرکش سے ان سے جب کوئی شیطان جو ہوتا ہے اوپر بات سننے کے لیے جاتے ہیں، پہلے تو ان کو اوپر آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں فرشتوں کے گیدرنگ میں جو ہے وہ شیطان بھی موجود تھا، ابلیس بھی موجود تھا، لیکن اب ان کی سب کو اوپر جو ہے ان کا سفر کرنے کی جب وہاں پہ ان کو منع کر دیا گیا ہوا ہے، تو یہ جو یہ ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی جو ستاروں کے پتھر ہوں یا ٹوٹے ہوئے جس طرح سے میٹرورس جو ان سے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ شیاطین جب اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کھینچ کر کے مارے جاتے ہیں وہ پتھر مطلب فرشتے جو کہ آسمان کی ڈیوٹی پہ موجود ہیں، تاکہ وہ نہ ہی آسمانوں کی طرف سفر کر سکیں اور نہ وہ اوپر جا سکیں، اور اس کے علاوہ جو بھی وہ پورٹلز ہوں گے یا وہ جگہیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا جو بیان ہے نا یہ اس صورت میں یہاں پہ کیا گیا ہے ان آیات میں، چونکہ جب تک انسان تھوڑا سا جو علم اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں ان کا تھوڑا سا ان کے بارے میں ریسرچ کی جائے اور سوچا اور سمجھا جائے، تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری صورتحال میں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لائک ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم شیاطین کو جو کہ اگر اوپر کی طرف جا کر کے کوئی اڑ کے جا کر کے کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم میٹرائڈس کو یا ان شولوں کی طرح جو چیزیں پتھر کی طرح اس طرح سے آتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، اب وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے بھگانے کے لیے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یہ نہ صرف یہ ایک تو بھگانے کے لیے یہ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بات اچک لے بھاگے، یعنی کہ وہ تھوڑی بہت بات جو سن لیتے ہیں تو فوراً اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہمیں میٹرائڈس کی طرح نظر آتے ہیں، ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا مذکورہ بالا چیزوں کا جنہیں ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ جو آسمان کا سسٹم ہے اور جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ زیادہ مشکل ہے، ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ سے انسان کا مٹی سے بننے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ یہ جو مٹی ہے اس کو پہلے گارے کی طرح اس کو اچھی طرح سے گوندا گیا تھا، اس کو چھوڑا گیا تھا، اور بلکہ آپ تعجب کریں گے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے، اس سے پہلے بھی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا، اور اب یہ جو بات یہاں پہ کفار مکہ کی بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی معجزہ پیش کر دی جائے تو بھی اس کے اوپر جادو کا الزام لگا دیتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیا سچ مچ ہی اٹھائے جائیں گے؟ تو ان کا بار بار ایک ہی چیز کے اوپر مطلب ان کے سوال ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حالانکہ اس سے پہلے کئی دفعہ اس چیز کا جواب دے چکے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی، تو آپ جواب دے دیجیے کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل بھی ہوں گے، یعنی کہ اس دن تم لوگوں کو اصل حقیقت پتہ چلے گی، اور وہ تو صرف ایک زور کی چھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے، یہ زور کی چھڑکی سے مراد ہے کہ جو سور پھونکا جائے گا اچانک سے ہی ہوگا، اور کب ہوگا
کہ ہم نہیں جانتے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو دوبارہ سے حضرت اسرافیل کو پیدا کریں گے، ان کے پاس سور ہوگا اور وہ اس کو وہ جو بھی وہ ایک آواز جس سے نکلتی ہے، وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ اس کو اس میں ہوا سے اپنے منہ کی ہوا سے اس کے مطلب وہ بجائیں گے اور آواز نکلے گی اور وہ زور کی چھڑکی، یعنی کہ وہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ جس کے ساتھ ہی تمام زندہ چیزیں جو ہے پیدا کر دی جائیں گی اور کہیں گے کہ ہماری خرابی ہے، یہی جزا اور سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔ اس دن جن لوگوں نے اللہ کی بات پہ عمل نہیں کیا ہوگا، اس دن وہ پریشان ہوں گے اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے خرابی ہے نا۔ تو اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کی ہمراہیوں کو، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ یہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس وقت ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرمانبردار بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے اس دن یہ سوال کریں گے کہ آج تم لوگوں ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کر رہے؟ بالکل اسی طرح جیسے دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف کی جاتی تھیں یا اسلام پہ چلنے والوں کے خلاف کی جاتی تھی، آج تو تم فرمانبردار بنے پھر رہے ہو، یعنی کہ کوئی غلط کام ہی نہیں کرے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں، کہیں گے تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو کہیں گے تم تو ہمارے ساتھ وہاں پہ اس طرح کی پلاننگ کرتے تھے، اور وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایماندار نہیں تھے۔ اب ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ تمہارا ایمان نہیں تھا، تم میں خرابی تھی، کوئی ایک دوسرے کو باتیں کریں گے، تم نے مجھے یہ بات کہی تھی اور کچھ ہمارا زور تو تم پہ تھا ہی نہیں بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے پروردگار کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور بس ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ تو آج کے دن سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر پر چھوڑ دیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی یہ وحی اور یہ کلام جو ان سا ہے شعر و شاعری لگتی تھی نعوذ باللہ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ نہیں بلکہ وہ تو نبی حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں، ان سے پہلے جو رسول آ چکے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی دن کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے، مگر اللہ کے برگزیدہ بندے ان کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، ان کی عزت افزائی کی جائے گی نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، یعنی کہ جنت کا نظارہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ تختوں پہ یعنی آرام کرنے والے بستروں کے اوپر ہوں گے آرام دہ سے، اور وہاں پہ جو ہے ان کی جو وہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شراب کے جام کا دور چلا، تو شراب تو دنیا میں حرام ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ شراب کا اہتمام کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ خاص قسم کا مشروب ہے اور وہاں پہ اس چیز کی اجازت ہے۔ اور جاری چشمہ کے مطلب ہے کہ جنت میں اس طرح کے مشروب ہوں گے کہ ان کا ذائقہ اور ان کا مزہ دنیا میں جو مشروب پیے جاتے ہیں چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ ہو ان سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ تو وہاں پہ ان کے تو چشمے بہرے ہوں گے، تو وہاں سے جب جی چاہیں گے اس کو پئیں گے، جو صاف اور شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ یہ دو چیزیں اس قسم کے مشروب ہے جس کو شراب کہا جا رہا ہے نہیں ہوں گی۔ ان کے پاس نیچی نظریں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ تو یہاں پہ جنت کی خاص مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایک جنتی کو وہ بیوی کے طور پہ بھی ملیں گی، ان کی نظریں نیچی ہوں گی اور آنکھیں بڑی ہوں گی، اور جیسے کہ چھپائے ہوئے انڈے اور بڑے بڑے موتی، مطلب جنتی ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھیں گے کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ ایک میرا ساتھی تھا، یعنی کہ وہاں پہ عام طریقے سے بات چیت ہو رہی ہوگی، اور وہاں پہ یہ جو پردہ کا جو تصور ہے اس وقت دنیا میں، اس کا مطلب ہے جہاں پہ مطلب سب لوگ موجود ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے مرد اور عورتیں دونوں موجود ہوں گے، یعنی بیویاں بھی ہیں ان کی اور خود وہ لوگ بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ جو یہ کہنا چاہیے جو گیدرنگ ہے وہاں پہ ہر طرح کا کھانا پینا ان کو موجود ہے لیکن پاکیزگی کے ساتھ۔ اب وہ جہاں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ چیز وہاں پہ بیان ہو رہی ہے، ان میں سے کہنے والا یہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے دن کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے، اور کہا کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جائیں گے؟ تو کہے گا کہ تم چاہتے ہو کہ تم اس کو جھانک کر کے دیکھ لو۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کریں گے، کسی ایک دوست کی جو کہ اسلام پہ ایمان نہیں لاتا تھا اور ان سے سوال و جواب کرتا رہ جاتا تھا، تو وہ دوسرا کہے گا کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو نے مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ تو اس وقت وہ جنتی شکر کرے گا کہ اس نے اس دوست کی بات نہیں مانی، بلکہ اسے یہ کلام کرے گا، کہا کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، بجز پہلی ایک موت کے نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ تو پھر یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی یہ کامیابی ہے جس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں پہ بیان فرمائی۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زقوم کا ذکر کیا جو کانٹوں بھرا جس کا پھل ہوتا ہے اور وہاں ایک کانٹوں بھری جھاڑی نما شکل میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔ جب یہ چیزیں بیان کی گئی کہ جہنم میں ایک درخت بھی ہوگا، تو یہ چیز ہے کہ جہنم تو آگ والی جگہ ہے، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسا قسم کا درخت ہے جو کہ زمین کی بجائے کسی آگ والی جگہ کے اوپر مطلب اس طرح سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ یہ اس طرح کا درخت ہے جو کہ جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ جو وہاں پہ اس علاقے میں بھی اس جگہ کے اوپر بھی وہ اس کو بنا سکے۔ تو البتہ یہ ہے کہ اس زقوم کی جو ہے نا اس کے مطلب ہوتا ہے کہ بدبودار اور بڑی عجیب سی گندی سی شکل کی چیز کے جو کہ جس کو جب نگلا جائے تو اس سے تکلیف ہو، تو اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا، کیونکہ یہ سخت بدبودار کڑوا نہایت ہی بری شکل کا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کھانا ہی نہیں ہوگا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے، یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے، تہامہ ایک وادی کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کوئی دنیا کا درخت نہیں ہے اور اہل دنیا
دنیا کے लिए, تو یہ اس چیज़ का पता भी नहीं है उन्हें, और जो सा है वो उसी वक़्त जहन्नुम में होगा. ये फ़तहुल क़दीर में ये चीज़ सारी बयान की गई है. लेकिन बात है कि ये ज़्यादातर तफासीर के जो ज़्यादा अक़वाल को देख कर के ये पहली बात सही लगती है कि ये वही दरख्त है जिसको उर्दू में तोहर भी कहते हैं. तो कैक्टस जो है ना, वो जिसके कांटे वाले, उसकी शक्ल अजीबो-गरीब भी होती है, तो ये इस तरह की दरख्त को कहा जा रहा है. वो कम पानी के साथ भी मतलब गुज़ारा कर लेता है, जिसके खुशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं. तो इस तरह से उसकी एक्सप्लेन किया गया है उस दरख्त को. जहन्नुमी इस दरख्त में से खाएँगे, उसी से पेट भरेंगे, उस पर गरम-गरम जलते पानी की मलूनी होगी, यानी कि उसको नीचे करने के लिए, उस खाने को तो पानी पीने के लिए जगह पे गर्म पानी मिलेगा. फिर उन सब का लौटना जहन्नुम की तरफ है. एक बात ये भी पता चलता है कि उस एरिया का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि जो वो पानी होगा वो गर्म खौलता हुआ होगा. तो इससे अंदाज़ा हो जाता है, यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादों को बहका हुआ पाया, ये उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे. इनमें से पहले भी बहुत से अगले भी बहक चुके हैं, जिनमें से हमने डराने वाले रसूल भेजे थे. तो अब देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ, सिवाय अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के. और जो हमें नूह ने पुकारा, तो देख लो कि हम कैसे अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं. हमने उसे, उसके घर वालों को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया, उनकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया. हमने उसका ज़िक्र खैर पिछलों में बाकी रखा. नूह पर तमाम जहानों में सलाम हो. हम नेकी करने वालों को इसी तरह के बदले देते हैं. और हमारे ईमानदार बंदों में, वो हमारे ईमानदार बंदों में से था. फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और इस नूह के बाद ताबेदारी करने वालों में से इब्राहीम ही थे. यानी कि जो आगे इंसान बढ़े तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जब उन्होंने अपने रब के पास बेऐब दिल लाई, यानी उनके दिल की तारीफ की जा रही है. और उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम क्या पूछ रहे हो, कि तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद चाहते हो, तो ये बताओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है. अब इब्राहीम ने एक निगाह सितारे की तरफ उठाई और कहा, मैं तो बीमार हूँ. इस पर वो सब इससे मुंह मोड़े हुए वापस चल दिए. तो ये क्या बात हुई थी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो कोशिश करते, कायल कर रहे थे कि वो जिन चीज़ों पे वो ईमान लाते हैं, उनकी पूजा करते, तो वो भी करें. तो उन्होंने उस चीज़ से इनकार कर दिया था, और वो गौर फ़िक्र जो करते रहते थे, तो उनको ये सितारा और इसको पूजना जो है, उसको उन्होंने रब नहीं माना. तो उन्होंने उसके बाद किया कि वो मुंह मोड़ के वापस चले गए. बस आप चुपके से उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं हो. यानी कि उन जो बुत बने हुए थे उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी. तो उनके सामने, चूंकि जब वो पूजा करते थे जो लोग, तो उनके सामने बहुत खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी. तो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात तक नहीं करते हो. फिर तो दाएं बाएं से पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने पर पड़ पड़े. तो उन्होंने जब उनसे सवाल जवाब किया और उसके बाद उनको मारा और या समझे कि तोड़ डाला, तो वो बुत परस्त दौड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जा हुए. तो जब वो ये काम कर रहे थे, तो उनको जिस तरह से पता चल गया, तो वो जो उनके वो बुत थे, वो उनके पास भागे हुए चले आए. तो उन्होंने कहा, आपने फरमाया कि तुम इन्हें पूछते हो जबकि तुम खुद इन्हें तराशते हो, कि तुम इनको खुद इनकी पूजा करते हो और खुद इनको अपने हाथों से बनाते हो, तो ये तुम्हारे रब कैसे हुए. तो देखिए, सोचने की बात है कि इंसान का जो रब है, उन्होंने तो इंसान को बनाया, इंसान अब अपने रब को तो नहीं ना बना सकता, वो तो खुद एक मखलूक है. हालांकि वो तुम्हें तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ने ही पैदा किया है. वो कहने लगे कि इसके लिए एक मकान बनाओ और इसमें दहकती हुई आग में इसे डाल दो. उन्होंने इसके साथ मकर करना चाहा, मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिया. और इब्राहीम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ. यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या जो बयान किया जा रहा है, वो बाबिल अराक के शहर में पेश आया था, जहाँ वहाँ से वो हिजरत करके फिर शाम चले गए थे, सात वाला जो मुल्क है, सीरिया. और वहाँ जाकर के उन्होंने जो है दुआ की थी अपनी औलाद के लिए भी. फ़तहुल क़दीर में ये बात लिखी हुई है. तो वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा, ए मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा. तो वहाँ से उन्होंने जो है अपने लिए दुआ करनी शुरू की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन. और ये जो है, ये दुआ भी, जैसे इसको भी हाईलाइट करना चाहिए और इन दुआओं को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल करना चाहिए. तो हमने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी. फिर जब वो बच्चा इसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा, और ये उनका जो औलाद और पहले बेटे जो हैं, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं. और बलोगत की उम्र के करीब पहुंचकर दौड़ने की उम्र को, यानी कि तकरीबन वो 12-13 साल की उम्र की, 13 साल की उम्र की थी. तो इब्राहीम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़बह करते हुए देख रहा हूँ. अब तू बता कि तेरी क्या राय है. बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो कुछ हुक्म हुआ है इसे बजा लाइए, और इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे. गर्ज जब वो दोनों मुती हो गए, यानी कि दोनों ने इस बात को मान लिया, तो उसने इस बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया. और तो हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, यकीनन तो आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया. यानी कि उन्होंने ज़बह करने के लिए पेशानी के बल अपने बेटे को लटाया, और ताकि वो उसको ज़बह कर सकें और ज़बह करते हुए उनका चेहरा ना देख सकें. और बाज़ रवायतों में ये भी आता है कि जो है, उन्होंने अपनी आँख पे जो है, आँखें उन पे पट्टी बांध दी थी. और जिस तरह से उन्होंने देखा कि वो ज़बह कर रहे हैं, ज़बह करने वाली पोजीशन में, बल्कि उनको उल्टा उस तरह से करके ताकि वो ज़बह करें. और अल्लाह ताला ने जब वो ज़बह करने वाले थे, उस वक़्त जो है, एक जो ज़बीहा के तौर पे एक मेंढा जो था, वो अल्लाह ताला ने जन्नत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा. और जो है, वो जब वो ज़बह कर रहे थे, तो वो नहीं जानते थे कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं कि मेंढे को ज़बह कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला ने ये उनके साथ एक मौजज़ा उस वक़्त किया था. तो वहाँ पे ये आयत में है कि तो हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, यकीनन तो आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं. और दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था. हमने एक बड़ा ज़बी इनके फ़िदिया में दे दिया, यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिया में एक बड़ा ज़बी जो सा है, वो उनकी जगह पे ज़बह किया गया था. तो हमने इनका ज़िक्र पिछलों में बाकी रखा. और यही सारी रवायत, यही सुन्नत इब्राहीमी जो है, अब दीन इब्राहीमी में, यानी इस्लाम के अंदर जो है, वो इसके ऊपर अमल किया जाता है. और ज़िलहज्जा के महीने में, और इसी की वजह से मतलब हम जो है, हज के बाद जो लोग हाजी भी कुर्बानी देते हैं, और जो हज पे नहीं जाते, वो भी अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं.
क्योंकि ये कुर्बानी देना जो-सा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से अपनी बात को पूरा कर दिखाया, जो कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो बात ये है कि अगर खुदा न ख़ास्ता अगर अल्लाह ताला वो ज़बीहा जो है वो उसका फ़िदया ना देते, उसको उस तरह से बदल ना देते, तो एक बहुत खुला और बड़ा टेस्ट था कि अल्लाह की राह में अल्लाह को मनाने के लिए अगर जो है वो इस तरह से इंसानी जान की कुर्बानी का, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दीन इब्राहिमी ना पहले और ना अब इंसानों की कुर्बानी किसी तरीके से भी जो है वो दीन का हिस्सा नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक इम्तिहान था, लेकिन फिर भी इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ जारी नहीं कर दी। हालाँकि इब्राहीम तो इसी चीज़ के ऊपर राज़ी भी हो चुके थे और ऐसी कोई चीज़ अल्लाह ताला ने जारी नहीं कर दी, वरना ये कि इंसान को जो है वो इस तरीके से अपने बेटों की जो है वो कुर्बानी देना पड़ी। बहरहाल इब्राहीम पे उनका ज़िक्र हमने पिछलों में बाकी रखा, यानी जो आने वाले लोग थे उनमें ये जो सुन्नत जो है उनकी जारी हो गई। तो इब्राहीम पर सलाम हो, हम नेकोकारों को इसी तरह का बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे और हमने उनको इसहाक नबी की बिशारत दी जो सालिह लोगों में से होगा, और हमने इब्राहीम और इसहाक पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाई। तो उन्होंने जिस तरीके से यानी कि बयान जैसे कि है कि हज़रत इब्राहीम के इस मज़कूरा वाक़े के बाद एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की भी खुशखबरी भी मिली और उनके बेटे उनके पास आए भी, और उनके बाद इसहाक के बाद जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो है वलादत हुई। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ का बयान मिलता है कुरान और हदीस से कि पहले जो उनके बेटे थे, जैसे कि ये आयात हैं, वो हज़रत इस्माईल ही होंगे, क्योंकि देखें इस वाक़या के बाद, इस टेस्ट के कामयाब होने के बाद अल्लाह ताला ने उनको इसहाक नबी की जो है उनके बेटे अलैहिस्सलाम की बिशारत दी थी। तो उस वक़्त तक जो थे हज़रत इस्माईल बड़ी औलाद है अलैहिस्सलाम, और वही उनके उस वक़्त इकलौते बेटे थे। तो लिहाज़ा जो है इसहाक अलैहिस्सलाम जो है ज़बी नहीं है। तो ये तमाम बातें जो-सी हैं और सराहत के साथ जो है फ़तह अल-कदीर व इब्न कसीर व ज़ादुल मआद में जो है वो दर्ज हैं। बात ये है कि जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान में भी बयान कर रहे हैं, तो ये वाक़या बिल्कुल उस तरीके से समझ आ रहा है। लिहाज़ा अब अगर अहले किताब अपने पास कोई तरह-तरह की बातें लेकर के आते हैं जो उन्होंने तब्दीली की हुई है अपने दीन में, तो उससे जो है हमारा कोई मतलब उसके साथ कोई कहना चाहिए कि हम वहाँ से कोई हक़ाइक़ नहीं लेंगे। तो इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जो उनको बरकत नाज़िल करने की जो बातें बयान फरमाई हैं, तो वो ये कि अल्लाह ताला ने उनके यहाँ पे उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा नस्ल की बढ़ोतरी की, जैसे कि बनी इसराइल के 12 कबीले बने। हज़रत इसहाक के बाद उनके हज़रत बेटे जो याकूब होते हैं अलैहिस्सलाम, उनके जो 12 बेटे थे उनसे बनी इसराइल की 12 कबीले बने, इनकी कौम फैली, काफ़ी फैली और बहुत ज़्यादा अंबिया इनके अंदर आए, ये अल्लाह ताला की बरकत थी। और इसके बाद तो यकीनन हमने मूसा और हारून पर भी बड़ा इन पर इब्राहीम और इसहाक पर बरकतें नाज़िल फरमाई, और इन दोनों को औलाद में बाज़ से तो बहुत नेक बख्त हैं और बाज़ अपने नस्ल पर सही ज़ुल्म करने वाले, यानी इनकी औलाद में इस तरह के लोग थे। दोनों तरह के ग्रोहों को बयान कर दिया। यकीनन हमने मूसा और हारून पर बड़ा एहसान किया और इन्हें उनकी कौम को बहुत बड़े दुख दर्द से निजात दी। तो ये बनी इसराइल का सिलसिला बयान करते-करते अल्लाह ताला ने जो है वो यहाँ पे मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की वक़्त दौर की जो बनी इसराइल थी, उनके बारे में ये चीज़ बयान की कि उनको किस तरह से दुख से निजात दी, खास तौर पे वो जो फ़िरौनियों का ज़ुल्म था और उनकी मदद की, तो वही कातिब रहे। हमने उन्हें वाज़ेह रोशन किताब दी और उन्हें सीधे रास्ते पर कायम रखा। हमने इन दोनों के पीछे आने वालों में ये बात बाकी रखी कि मूसा हारून पर सलाम हो। बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। यकीनन ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। बेशक इलियास भी पैगम्बरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया तुम अल्लाह से डरते नहीं, क्या तुम बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बड़े बेहतर खालिक को छोड़ देते हो? तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो एक बाल नामी बुत जो है, यहाँ तो ये कि बाज़ कहते हैं किसी देवी का नाम था। बहरहाल जो है वो एक इस बुत की पूजा करते थे। ये ये जो नबी जो है ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक इसराइली नबी थे, हज़रत इलियास, और ये जिस इलाके में भेजे गए थे उसका नाम बालबक था। बाज़ कहते हैं कि इसका नाम सामरा था, और जो फ़लस्तीन का मगरबी वस्ती इलाका है, और यहाँ के लोग बाल नामी बुत के पुजारी थे, और बाज़ जगहों पे इस जगह का नाम बालबक्का जो सा है वो कहा गया है। बहरहाल वो देवी थी या बुत था, तो उसका नाम बाल था जिसकी वो पूजा की जाती थी। और उन्होंने जब उनको ये सवाल पूछा कि तुम इस बुत को पुकारते हो और अपने सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है, यानी जो पहले गुजर चुके हैं और जो आगे भी नस्ल तुम्हारी आएगी, तब सबका रब अल्लाह है। लेकिन कौम ने उन्हें झुटलाया, बस वो ज़रूर अज़ाब में हाज़िर किए जाएँगे, और सिवाय अल्लाह के मुख़लिस बंदों के। हमने इसे इलियास का ज़िक्र पिछलों में भी बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो, हम नेकी करने वालों को इसी तरह का बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे, बेशक लूत भी पैगम्बरों में से थे। हमने उन्हें और उनके घरवालों को सबको निजात दी, और बजुज़ उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में होगी। तो लूत अलैहिस्सलाम की कहानी में और उनकी बात में जो अल्लाह ताला ने हमें पहले भी बयान किया, उसमें ये चीज़ कन्फर्म हुई थी कि उनके अहले खाना में से उनकी जो बीवी थी वो पीछे रह जाने वालों में से हो गई थी। और अलबत्ता इसका ज़िक्र नहीं मौजूद की वजह क्या थी, अलबत्ता अखलाकी कमज़ोरी भी जो-सी थी, इसमें जो है इसमें जो है इस चीज़ का जो है अंदेशा किया जाता है कि उनके अंदर कोई इखलाकी कमज़ोरी थी, क्योंकि इस चीज़ का तो लाज़िम बात है कि उनके अंदर ईमान भी था, लेकिन ये कि और ये कि वो किरदार की भी अच्छी थी, लेकिन ये कि जो उनकी इखलाकी कोई वो ऐसी सूरत हाल थी कि उनका जो मिलान था या उनकी हमदर्दियाँ उस कौम के साथ थी। फिर हमने औरों को हिला कर दिया, और तुम तो सुबह होने पर इनकी बस्तियों के पास से गुजरते, यानी अब ये जो बस्ती तबाह हो चुकी हुई है, इसके ऊपर से काफ़िले गुजरते हैं और रात को भी, क्या फिर भी नहीं समझते? तो ये सवाल है कि जो अहले मक्का के सामने ये
ये आयत उतर रही थी, तो इनसे ये सवाल है कि वो दिन-रात वहाँ से उन इलाकों से तिजारत की गर्ज से और वैसे वो गुज़रती हैं, तो क्या वो नहीं देखते कि ये जो है लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के सदूम और के साथ क्या जो है मामला हुआ। तो और बिलाशुबा यूनुस नबियों में से थे और जब भाग कर भरी हुई कश्ती की तरफ पहुँचे, यानी कि जो उनकी कौम थी, उन्होंने अल्लाह ताला की बात जो है उन तक उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी कौम का रवैया देखा, तो इससे पहले कि अल्लाह का कोई हुक्म आता कि इस कौम का क्या किया जाए, तो वो वहाँ से जो है जगह छोड़ कर के चल दिए थे और बहुत ही मायूस होकर के। तो वो जब वहाँ से इलाके से निकले तो समंदर तक पहुँचे जहाँ पे कश्ती मौजूद थी, भरी हुई थी, तो फिर और वो समुद्री सफ़र पे रवाना हो गए और फिर कुरअ अंदाज़ी हुई तो ये मगलूब हो गए। तो वहाँ पे जब समंदर में तूफ़ान आया, तो वहाँ पे रिवाज था कि वो जब जैसे कि भारी हो जाए, अगर ज़्यादा लोग सवार हों और वो डूबने लगे कश्ती, तो उसमें से सामान को फेंका जाता था और कुछ इंसानों की जब बारी आई तो उन्होंने कुरअ अंदाज़ी की, तो इनका नाम निकल आया, तो यानी कि ये मगलूब हो गए। फिर और इनको उन्होंने उन लोगों ने इनको समंदर में फेंक दिया, तो फिर इन्हें मछली ने निगल लिया और खुद अपने आप को मलामत करने लग गए। और बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में ना होते, क्योंकि उन्होंने जो कलिमा उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था, तो उसके अंदर अल्लाह ताला की पाकी थी और अपने आप को उन्होंने मलामत की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये कलिमा बयान किया था, तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक ये उसकी पेट में ही रहते। तो बस अगर तो इसमें अल्लाह ताला ने बयान किया कि क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की पाकी बयान की थी, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने उनको उस तकलीफ से निजात दी और अगर वो इस तरह से अमल ना करते, अल्लाह की पाकी बयान ना करते, अल्लाह से मदद ना माँगते, तो क़यामत तक उसके पेट में ही रहते। बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया, उस वक़्त वो बीमार थे। तो चूँकि मछली के पेट में काफ़ी सारा कहना चाहिए एसिडिक वाटर में वो पानी में वो उस वक़्त रहे, जो बहुत तेज़ाबी शक्ल का होता है और क्योंकि एक इतनी बड़ी मछली के तेज़ाब के ताकत का अंदाज़ा ये होता होगा कि उसके अंदर कितना ज़्यादा वो जो भी खाना खाती होगी उसको हज़म करने के लिए ज़्यादा मिकदार में, तो उसको इंसान तो उसके आगे बहुत मामूली सी चीज़ है। तो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उनके जिस्म के ऊपर गलने-सड़ने के असरात जो उनसे हैं, उस तेज़ाब के जो असरात आए वहाँ पे उस जगह पे रहने पे, तो मछली ने अल्लाह के हुक्म से जब उनको चटियल मैदान में यानी साहिली मैदान में जब फेंका और तो वहाँ वो उस वक़्त बीमार थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी जिस्मानी हालत को बयान किया है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वहाँ पे उस वक़्त बीमारी की हालत में थे। ये जो सारा वाक़या उनके साथ हुआ था और इस सिलसिले में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो इलाका है, वो ज़्यादातर इराक का इलाका नेनवा जो मौजूदा मोsul में है, उस जगह के ऊपर ये नबी बना कर के भेजे गए थे। और ये अशूरियों का पाया तख्त था जिन्होंने 1 लाख बनी इसराइलियों को कैदी बनाया हुआ था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि फ़िरौन के ज़माने में इसराइली जो उनसे थे बनी इसराइल उनको कैदी बनाया गया था। इसी तरीके से आशूरी जो उनसे थे, उन्होंने भी बनी इसराइलियों को कैदी बनाया हुआ था। इनकी हिदायत